بے مثال کے آج کے ایپیسوڈ میں آپ کا سواگت میں سروش کفیل۔ بہت کم لوگ ہیں اس دنیا میں جو ریئل سینس میں ملٹی ٹیلنٹڈ کہلائے جاتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ایک ایسے شخص جڑے ہیں جنہوں نے اپنا کریئر سٹارٹ تو کیا ایز اے رنجی کرکٹر، پھر اپنی پینٹنگز بنائی اور پھر ایونچولی ایک براڈ کاسٹر کے نام سے مشہور ہوئے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سید ہمایوں قیصر کی۔ چلیے ملاقات کریں۔ جو میرا کریکٹر فارمیشن ہوئی ہے وہ کرکٹ کے میدان سے بہت ہوئی ہے۔ If you feel like painting, you paint it. You can't force yourself to paint. میری آواز عام آدمی جیسی تھی تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی بڑا فاسٹ کیا مجھ سے۔ ہمارے ساتھ نیوز 18 سے جڑنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ بہت بہت تھینک یو آپ کا۔ کہاں سے سٹارٹ کریں ہم لوگ؟ یو ایز اے کرکٹر، یو ایز این آرٹسٹ، یو ایز اے براڈ کاسٹر؟ میں وہاں سے جہاں سے میں یہاں اس دنیا میں آیا۔ I was born just like any other child. That's true. So کرکٹ کے حوالے سے پہلے ہم بات کریں۔ ٹھیک ہے۔ رانجی میں کھیلا آپ نے، ریپرزینٹ کیا، آپ کے برادر بھی کھیلتے تھے۔ صحیح بات ہے۔ تو کیسا رہا وہ کرکٹ کا ایکسپیرینس؟ دیکھیے کرکٹ کا معاملہ ایسا ہے کہ اسکول میں تھا، میں بسکو میں، جی، تو وہاں کھیلنا شروع کیا۔ مجھ سے 2 کلاس آگے بردر پڑھتے تھے، وہ بھی کھیل رہے تھے۔ پھر 8ویں میں میں اسکول کی ٹیم میں آ گیا اور 8ویں پاس کی، اور ابھی میں 15 سال کا تھا تو JNK کے انڈر 19 میں آ گیا۔ اچھا۔ پھر جلندھر چلے گئے ہم JK انڈر 19 کھیلنے، اور پہلی بار ٹرف وکٹ دیکھا وہاں، تو ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ کیا چیز ہے۔ اچھا۔ وہ چمک رہا تھا، بڑا گرے جیسا، بڑا ہارڈ تھا۔ برٹن پارک میں، اب اسے بیدی اسٹیڈیم کہتے ہیں وہاں، تو ہم نے دیکھا پھر ایسے ایسے پاؤں سے کر رہے ہیں، ٹھوک رہے ہیں، یار یہ سخت چیز کیا ہے۔ ہم نے تو میٹ پہ عمر بھر کھیلا ہے، دلی کے ساتھ میچ تھا وہاں، ان دنوں کپل دیو کھیل رہے تھے ہریانہ میں، اور یوگراج اور باقی کھیل رہے تھے وہاں تو وہ گیا۔ پھر اس کے بعد انڈر 22 میں کھیلا JNK کے، پھر یونیورسٹی آف کشمیر میں، پھر اس کو کیپٹن کیا۔ پھر سری نگر جمخانہ یہاں کا ٹاپ کلب تھا، اس میں رہا، کیپٹن کیا۔ پھر رانجی کھیلا اور رانجی ٹرافی کھیلا کچھ سال، تو اس میں سارے بڑے پلیئروں کے ساتھ کھیلا، کیونکہ نارتھ زون کی ٹیم جو تھی اس وقت، اس میں آپ دیکھیں سریندر کھنہ تھے، امرناتھ بردرز تھے، اور مدن لال تھے، کپل دیو تھے، یش پال تھے، یہ سارے نارتھ زون میں تھے۔ آدھی انڈین ٹیم تو دلی میں تھی۔ اچھا۔ اور 4 ہی میچ سال میں کھیلنے ہوتے تھے، 3 دن کے 4 میچ نارتھ زون کے۔ آج کی طرح T20 نہیں، 50-50 نہیں، 12 میچ نہیں، تریپورہ لائی کے ساتھ سینچری بنانے اور 8 وکٹ لینے کا موقع نہیں، ساری تگڑی ٹیموں سے میچ۔ تو میرے خیال میں وہ میرا جو ہے نا، اس میں جو میرا کریکٹر فارمیشن ہوئی ہے وہ کرکٹ کے میدان سے بہت ہوئی ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ آف لائف بہت ہوئی ہے کرکٹ کے میدان میں۔ میں نے بہت سیکھا ہے کرکٹ کے میدان میں، اپس اینڈ ڈاؤنز، آج ہیرو اور کل زیرو، آج 100 رن بنائے، کل پہلی بال پہ آؤٹ ہوا، آج ایک بلائنڈر کیچ پکڑا، کل 3 کیچ سیدھے چھوڑ گئے۔ ہاں، سٹرز۔ تو یہ برابری پہ لاتا ہے آدمی کو، یہ سمجھنا ہے، اور یہ ہے کہ ایٹیکیٹس آف لائف سیکھتا ہے آدمی سے۔ اور بسکو میں ہمارے ماسٹر کاشی ناتھ در تھے، وہ انگلش پڑھاتے تھے، رانجی پلیئر تھے، بزرگ تھے، کرکٹ کے انچارج تھے۔ اچھا۔ تو انہوں نے بہت سکھائے، تہذیب سکھائی گیم کی انہوں نے بہت زیادہ۔ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بیٹ پکڑنا نہیں سکھاتے ہیں، لیکن گیم کی ایٹیکیٹ، تہذیب اور کریکشن کرتے ہیں آپ۔ جی جی۔ اور ایک تھاٹ پروسیس ڈیولپ کرتے ہیں دیٹ یو آر اے اسپورٹس مین، ہاؤ شوڈ یو پلے اینڈ بہیو مور امپورٹنٹلی۔ اب وہ بہیو کا مسئلہ آج کل تھوڑا ڈھیلا ہی ہے، باقی ہوئے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کتنا فرق ہے تب کے کرکٹ میں اور آج کے کرکٹ میں، اسپیشلی کشمیر میں؟ پہلا ڈفرینس یہ ہے کہ آج آپ بہت کھیلتے ہیں اسٹیٹ کے لیے۔ جی۔ ہم اسٹیٹ کے لیے 4 ہی میچ کھیلتے تھے سال میں، اور اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اگر ایگزام ہے تو نہیں جاتے تھے کھیلنے۔ ہاں ہاں۔ بڑے سے بڑا پلیئر ہو وہ نہیں جاتا تھا، میرے پڑھائی کا کیا ہوگا، کریئر تھا نہیں اسپورٹس، تو اور کرکٹ تو کریئر ہی نہیں تھا۔ پھر دوسری بات، جو فیسلٹی تھی وہ بالکل نہیں تھی نام کو۔ جی۔ ہم کو پرومس کیا جاتا تھا کہ آپ کو 30 روپے دن کے ملیں گے، مگر ملتے کبھی نہیں تھے، پرومس ہی رہتا تھا، وہ گھر کے پیسے ڈے کا۔ اچھا۔ پھر یہ ہے کہ جب میں اسکول میں تھا تو ہمیں 3.5 روپے ملتے تھے دن کے۔ اچھا۔ اور اگر پریکٹس کرو گے تو 1.5 روپے ملیں گے ریفریشمنٹ کے، ہو گئے 5۔ اچھا۔ جس دن پریکٹس نہیں کی اس دن 3.5۔ اور میں بتاؤں گا آپ کو، یہ 9th میں تھے ہم، تو گئے تھے JNK اسکولس کھیلنے، 8ویں پاس ہی کی تھی، جی گئے تھے۔ تو اس میں جب ہم گئے کھیلنے تو ایسا ہوا کہ وہ پرومس ہی تھا، جی، وہ پیسے دیے نہیں، اور ایک دن مجھے اور میرا دوست رشید تھا، اس کو فاقہ لگ گیا جب ہمارے کوئی پیسہ نہیں تھا کہ ہم کچھ کھاتے۔ اور یہاں جب ہم امر سنگھ کلب میں کھیلتے تھے تو ہم
उसी बाल्टी जिससे पानी डाला जाता था बाग को, उसी से हम ड्रिंक सेंटर में पानी पीना होता था, उसमें मग भी होता था और घास भी। तो आज बात है, आज बैच के दिन के 70,000 रुपये हैं, आज जहाज़ में ट्रेवल करना है, हम 3rd क्लास में भी नहीं, वो भी जबरी डब्बे में, नो रिजर्वेशन ट्रेवल, या बस में यहाँ से निकलोगे और सीधा जाओगे दिल्ली तक नॉन स्टॉप, और तब बहुत टाइम लगता था, जम्मू तक 12 घंटे लगते थे, उधर तक जाओगे और मैच खेलोगे, वहाँ भी कोई फैसिलिटी नहीं है रहने की। तो फटीग लेवल और उस सब का कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ नहीं, और कोई जगह नहीं है रहने की। तो ये अच्छा है अगर आज लोगों को पैसा मिल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं इस हिसाब से, मगर मुझे लगता है ये एंजॉय नहीं कर रहे हैं जितना हमने किया। मज़ा आता था उस एडवर्सिटी में, ऐश करते थे, इकट्ठे प्लेटफॉर्म पे सोए रात को रेलवे में, बीच में बाथरूम में, मुझे याद है परवेज मेरे ब्रदर में और 3 आदमी ट्रंक डाले और बाथरूम में रात गुजार रहे ट्रेन के, उन्हीं पे ऐसे ऐसे टेढ़े टेढ़े लेटे हुए हैं। तो मगर मज़ा आता था, एंजॉय करते थे, वो एक दूसरे की हेल्प करना, ये करना, एक दूसरे के लिए फेंड करना एक दूसरे को, और किसी तरह सर्वाइव करना। जैसा आपने कहा करियर कभी नहीं सोचा था, उसकी कोई खास वजह थी कि करियर नहीं ऑप्ट करूंगा? तब था ही नहीं। मुझे याद है यहाँ ऐसा हुआ कि यहाँ पॉली उमरीगर आए 1 साल जी, उन्हें कैंप लिया, वो बहुत बड़ी हस्ती थे क्रिकेट की, तो यहाँ कैंप हुआ। तो कैंप के बाद लास्ट डे उन्हें परवेज से कहा, मेरे ब्रदर से, परवेज कम टू बॉम्बे, यू विल वॉक इनटू बॉम्बे साइड, और गवास्कर बॉम्बे के कैप्टन है, हमने तुम्हारे जैसा कीपर नहीं देखा इंडिया में, तुम बॉम्बे के लिए कीपिंग करेगा, हमें कीपर की ज़रूरत है। और उन्होंने रिटायरमेंट से कीपर को लाया फिर, क्योंकि उनको नहीं मिला। इसने कहा कि मैं इंजीनियरिंग के 3rd या 4th ईयर में हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊँगा। वहाँ पे फिर बॉम्बे में खेलता तो इंडियन टीम में पहुँच जाते थे बॉम्बे वाले सारे, बॉम्बे की टीम ऐसी थी, कंपनी सारे थे उन दिनों, मगर ये कि वो नहीं गया। अच्छा ये बताएं कि क्रिकेट के साथ साथ फिर आपका एक ऐसा दौर था जहाँ पे आप पेंटिंग में भी मुलविस थे, अभी भी है? मैं अभी भी करता हूँ। और ये पेंटिंग का शौक कहाँ से हुआ? देखिए पेंटिंग का ऐसे सीरियसली हमारे घर में कोई पेंटिंग नहीं करता था। मेरे एल्डेस्ट ब्रदर जावेद थे, वो पेंसिल ड्राइंग्स अच्छी करते थे, स्केचिंग। फिर परवेज को मैंने देखा कि ऑयल पेंट में करते थे। तो फिर मैं शायद 11वीं में था, PUC तब कहते थे, अमर सिंह कॉलेज में, तो मैंने शुरू किया वाटर पोस्टर कलर पेंटिंग, पोस्टर कलर ऑन हैंडमेड पेपर, वो हैंडमेड पेपर जो पेंटिंग के लिए होता है, उस पर हमने काम मैंने शुरू किया। और मैं याद है कि मैं उसी 12वीं में था तो J&K की स्टेट एग्जीबिशन के लिए मेरी 2 पेंटिंग सेलेक्ट हुई उस साल। अच्छा। और तब से लगातार होती रही। फिर ऐसा हुआ कि 1986 में मुझे स्टेट अवार्ड मिला पेंटिंग के लिए, पेंटिंग के लिए। फिर जब मैं रेडियो आया 91 में, मामला अजीब सा हो गया ये कि वहाँ वो 24 घंटे का काम है ब्रॉडकास्टिंग जी, और घर में भी आपने ये सुना, वो सुना, ये लिखा, कल का, परसों का, इसकी बात का ध्यान, वो वगैरह, और ऑलमोस्ट छूट गई पेंटिंग। मैंने 15 साल तकरीबन हार्डली पेंटिंग की, और ब्रॉडकास्टिंग के दौर में। नहीं, फिर बीच में 15 के बाद थोड़ी थोड़ी की, और ख़ास नहीं की। आफ्टर रिटायरमेंट मैंने, मेरे ख्याल में मेरे जो अनफिनिश स्केचेस थे, जो मेरे आइडियाज थे कागज़ पे कहीं रखे, मैंने पिछले 3 साल में मेरे ख्याल में 30 पेंटिंग्स बनाई तब से, फिर से। क्योंकि फिर अब इसमें है ना, पेंटिंग का मामला ये है, मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मगर इसमें एक आमद होती है जैसे शायर को होती है। इफ यू फील लाइक पेंटिंग, यू पेंट। करेक्ट। यू कैन फोर्स योरसेल्फ टू पेंट। एंड अगर इफ यू हैव टू मेनी थिंग्स ऑन योर ब्रेन, यू विल नॉट बी एबल टू पेंट। हाथ नहीं चलेगा, वो वहीं अटकेगा, वो नहीं चलेगा जब तक जहन परेशान है। और इसलिए फिर वो पेंटिंग का दौर रहा बड़ा अच्छा, और मुझे अच्छा लगता है कि इट्स एन आउटलेट फॉर मी। और आज मुझे दोस्त हैं जो मेरे शागिर्द हैं, स्टूडेंट हैं, पेंटिंग के बगैर बाकी जो मैं काउंसलिंग करता हूँ उसके, वो मुझे अपने बच्चों की तस्वीरें भेजते हैं। उन्हें स्केच बनाया, कुछ बनाया, 4थी में बच्चा है, 2री में है, 6 साल का है, इसको क्या करना चाहिए? मैं कहता हूँ इसको कुछ नहीं करना चाहिए, इसकी जो मर्जी करने दो अभी। इसको नहीं कहना ये करो वो करो, और ये नहीं कहना बताओ क्या किया, नहीं बताओ, वो नहीं बनाएगा इस डर से कि मुझे बताना है। उसका इमोशनल आउटलेट है टू स्प्रेड कलर्स, लेट दैट हैपन। अगर ये कंटिन्यू किया तो शी और ही विल डेवलप इनटू समथिंग, यू कैन फोर्स इट। मगर आज जमाना फोर्स का ही है। हर चीज, ये बनना है, वो बनना है, और आर्टिस्ट भी बनना है जबरदस्त। सही कह रहे हैं। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे, हुमायूं साहब के साथ बातें जारी हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बातें चल रही हैं हुमायूं जी से। तो ये बताएं, अक्सर जब हम पेंटिंग की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि बनाते क्या होते हैं? बिल्कुल सही। सो व्हाट डू यू मेक? लेकिन एक और चीज़ है, जब बनाते हैं तो लोग कहते हैं मुझे बताओ ये क्या है। मैं कहता हूँ रंग पसंद है, अच्छी लगती है, हाँ काफ़ी। एक्सप्लेन नहीं करनी है, जो समझने वाला है वो समझ जाता है। देखिए
थोड़ा मामला ऐसा है, ना तो मैं लैंडस्केप बनाने के काबिल हूँ, ना मैं पोर्ट्रेट बनाने के काबिल हूँ, मैं नहीं बनाता हूँ। जो मैं बनाता हूँ वो सूरज बनाते हैं तो मैं गर्मी बनाता हूँ उसकी, वो फूल बनाते हैं तो मैं खुशबू बनाता हूँ उसकी, हाँ वो दिखाते हैं हवा चल रही है, दरख्त हिल रहे हैं तो मैं हवा की फील पैदा करता हूँ, मैं ऐसी चीज़ें बनाता हूँ। हाँ मेरे में फिगर्स होंगे, चीज़ें होंगी, आपको कहीं आदमी भी दिखेंगे, कहीं कुछ हो रहा दिखेगा। कश्मीर में मैंने में कश्मीर पे कुछ काफ़ी पेंटिंग्स बनाई जो हो रहा था यहाँ अर्ली 90s में, तो फिर उसमें आपको फील लगेगा बराबर टाइटल से ये क्या बता रहा है हाँ, बंदा, हाँ। तो मगर वो जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं नहीं बनाता हूँ क्योंकि मुझ में वो कैपेबिलिटी नहीं है जो बाकियों में वो चीज़ें बनाने की। तो कोई पर्टिकुलर जगह से आपने अपनी इंस्पिरेशन डिराइव की, कोई पर्टिकुलर आर्टिस्ट थे, पेंटर्स थे? नहीं, कुछ भी नहीं, इट जस्ट हैपेंड, कुछ भी नहीं। इसलिए क्योंकि मैं देखिए चाहे ब्रॉडकास्टिंग हो, बाकी हो चीज़ें हों, मेरा ध्यान ही नहीं इस तरफ गया टू फॉलो समवन। मगर मेरी ये है एक लाइफ में एक बार ये हुआ कि मैं सुबह 6 बजे 6:30 के करीब निज़ामुद्दीन वाली आ गया। मैं वहाँ से निकला तो मेरे सामने एक साहब आ रहे हैं, ग्रे रंग की कोट पहन के, विंटर है जी, मफलर है उन्होंने रखा, क्रीम कलर की पैंट है, सफ़ेद दाढ़ी, लंबे बाल। वो गए दुकान में, ऐसे कुछ दिखाया वगैरह, बाहर बैठे, एक कुर्सी सीधी रखी, एक का सामने उल्टी रखी, उस पे चाय का कप रखा और निहारी, और मैं गया साथ में कुर्सी लगा के बैठ गया। MF हुसैन। कहा क्या है, मैंने सलाम की, कहा क्या बात, यहाँ क्या है, कैसे हैं आप? मैंने कहा जी सर्दी है बहुत वगैरह, आप यहाँ हैं? कहाँ मैं आता हूँ यहाँ, क्या करते हो? मैंने कहा मैं उन दिनों इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएट्स में सोशल साइंटिस्ट। अच्छा, तब आपने ब्रॉडकास्टिंग का नहीं, मैं ऐसे काम करता हूँ वहाँ दिल्ली में। अच्छा क्या शौक है? मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा ब्रश चलाता हूँ। भैया अच्छी बात है। मैंने कहा वो है ये है। फिर कुछ उनने दुआ शुआ दी, फिर मैंने ऑटोग्राफ लिया। उसी दिन मैं कैमरा लेके घूमता हूँ, सारे टाइम लाइफ में घूमता था बैग। उस दिन नहीं था मेरे पास सुबह। मैंने कहा अंदर जाना है, कहाँ ले जाऊँगा। अब उसके बाद मैंने एक सवाल उनसे किया। मैंने कहा हुसैन साहब ऐसी बात है कि आप जाने जाते हैं कि नंगे पैर चलते हैं? आज तो अच्छा खासा लेदर का बूट पहने आप। तो कहते हैं यार इतना भी अहमक नहीं हूँ जाड़े में पैदल निकलूंगा। जनवरी था। तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे, उनसे मुलाकात हुई। फिर ब्रॉडकास्टिंग एक ऐसा दौर आया आपकी लाइफ में जहाँ पे फिर आप बस पीपल स्टार्टेड नोइंग यू, द एंटायर वैली, द एंटायर इंडिया थ्रू ब्रॉडकास्टिंग। कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा आपके ऊपर ब्रॉडकास्टिंग का? मेरे ख्याल में काफ़ी, मैं इस सेंस में बताऊंगा काफ़ी। ये मैं बताता हूँ ऐसे कि मुझे खुद नहीं पता था इस शोबे में मुझे कुछ करना आएगा जी। UPSC पास किया आ गया। हाँ। UPSC पास करके थोड़ा ना पता होता है रेडियो पे बोलना कैसे जी, है। जी। ट्रू। तो सेलेक्ट हो गया, आ गया। फिर यहाँ मैंने देखा लोगों को। मेरी एक फ़ायदा था मुझे, मैं बताऊँगा। ये नहीं कि वालिद ब्रॉडकास्टर थे, शायर थे, अदीब थे, वो नहीं। वो घर में अपनी ब्रॉडकास्टिंग की, रेडियो की कभी बात नहीं करते थे जी। और हम कभी रेडियो जाते ही नहीं थे, न कभी गए थे। तो इसलिए उससे नहीं, मैं रेडियो बहुत सुनता था। एक तो जब हम पैदा हुए तो हमारे घर में नॉन स्टॉप रेडियो की आवाज़ चल रही थी सुबह से रात गए तक। बाकी उसमें रेडियो कश्मीर था, उसमें लाहौर था, इस्लामाबाद था, BBC था, इंग्लिश सर्विस उनकी, और बाकी ऐसे स्टेशन दिन भर। वो सो गए होते थे तो भी रेडियो कर रहा होता था। कोई बुझाए तो वो जाग जाते थे, क्या हुआ। तो इसलिए, और मेरा एक पैशन था। मैं जब वहाँ नौकरी कर रहा था, यहाँ रेडियो में आने से पहले, उसमें ट्रैवल बहुत था। मैं 300 में से कम 140 दिन तो टूर पे होता था। तो कुछ वर्ल्ड बैंक के, कुछ अनटायर्ड गैट के, फोर्ड फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स वगैरह थे, उनके मैं देख रहा था। मेरे साथ होता था हर वक्त ट्रांजिस्टर जिसमें शॉर्ट वेव हो। ओके। एक मसला था क्योंकि मुझे BBC की इंग्लिश सर्विस सुनने की एडिक्शन थी। ओके। तो मैं बहुत सुनता था। तो वो मैंने सुनी। फिर ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कमीशन वगैरह वगैरह, साथ में इंडियन स्टेशन में जैसे रेडियो कश्मीर जी। और जब ये अब के सुन के हमने अब के उसमें सुना कि बच्चे थे हम, मेहदी हसन की आवाज़ सुनी, फरीदा खानम की आवाज़ सुनी, बेगम अख्तर की आवाज़ सुनी वगैरह। तो वो म्यूज़िक का हमें हो गया ज़बरदस्त। हमारे साहब अक्सर देखा गया है जो रेडियो है उसके लिए एक पर्टिकुलर वॉइस चाहिए होता है, जिसे हमें कन्वेंशनल वॉइस। बिल्कुल सर। आपकी आवाज़ एकदम डिफरेंट थी। देखिए मैं बताऊंगा आपको, एक था कि कंसेप्ट था ग्रैम वाली आवाज़ जी, भारी भरकम आवाज़। हाँ। रेडियो में जो ऐसी आवाज़ होती है ना, वो जो आवाम है पसंद तो करता है, अपनी आवाज़ नहीं मानता उसको, क्योंकि ये आवाज़ हमारी जैसी नहीं है। नहीं, करेक्ट। मेरी आवाज़ आम आदमी जैसी थी,
ہو سکتا ہے پروننسیشن تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ٹھیک ہوتا ادائیگی ٹھیک ہوتی جی تو انہیں آئیڈینٹیفائی بڑا فاسٹ کیا مجھ سے یہ ہماری طرح بات کرتا ہے. اور ایک اور چیز تھی کہ ریڈیو کشمیر کی ایک زبردست لیگیسی تھی. اسٹالورٹس پیدا کیے ہیں اس نے پہلے سے, پروگرام ہی زبردست کیے ہیں ان نے, لیکن ٹریڈیشن سے ہٹنا نہیں مانتے تھے لوگ. ہاں روایت پسند اتنے تھے کہ اگر آپ ہٹیں تو سمجھتے تھے دنیا تباہ ہو گئی. اچھا. پھر نثار صاحب آئے جی. اسی میں آیا, ہم 2 نئے آئے جی. اور کچھ اور لوگ جو تھے وہاں. تو پھر وہ انقلاب 90 کے بعد آیا جی کہ اگر مجھے 1 یا 2 بڑے آدمی فون کرتے ہیں تمہارا پروگرام پسند آیا اور میں 1 ہفتے خوش رہتا ہوں تو میرا فیلئر ہے, اس سے بنسبت کہ مجھے 20,000 آدمی سنتے ہیں اور کہتے ہیں ہم خوش ہو گئے تو میری سکسیس ہے. کافی انٹرسٹنگ باتیں چل رہی ہیں ہمایوں صاحب سے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے. باتیں چل رہی ہیں ہمایوں قیصر صاحب سے. ہمایوں صاحب یہ بتائیں, یہ آپ کی زندگی کے کئی سارے دور آئے جو ہمیں دکھے, لوگوں کے ساتھ آپ نے ایک کنیکٹ بنایا اپنے ایک انکنونشنل وے سے. آپ کی جو فیملی ہے اس دوران, وہ جو فیزز رہے آپ کے, ان کا ساتھ کیسا رہا؟ دیکھیے یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ خوش قسمتی میری ہے, میرا آج بھی ہے سینکڑوں لوگوں سے کنیکٹ. کریکٹ. اور کمال یہ ہے کہ وہ آج بھی میرے ساتھ بات کرتے ہیں, میں حیران ہوں. That's so true. ایک بات. دوسری بات جو آپ کہتے ہیں نا, پہلے ماں باپ کا سپورٹ جو رہا جی, اس کے بغیر تو چانس ہی نہیں تھا کہ آپ اس پیریڈ میں سروائیو کرتے ہیں جی یہاں جی, کیونکہ حالات ایسے نہیں تھے کہ آپ بچ سکتے تھے. کریکٹ. اگر گھر میں آپ کے انتشار ہے تو آپ جب مائک پہ آئیں گے, کیمرہ کے سامنے آئیں گے, وہ آپ کی شکل پہ آئی جائے ہاں, ریفلیکٹ ہوگا, اور آپ بیچ میں بھولیں گے چیزیں, بیچ میں یہاں وہاں نکل جائیں گے کیونکہ دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے نا. جی. تو وہ سپورٹ بہت چاہیے, ڈیفینیٹلی چاہیے, اور بہت سپورٹ ملا. اور پیرنٹس کا اس دوران جب آپ کرکٹنگ میں تھے اپنے آرٹ کی, وہ تو کمال ہے, کمال ہے. کرکٹنگ میں تو میں حیران ہوں, تب کمائی بھی اتنی نہیں تھی لوگوں کی, تنخواہیں بھی کم تھی. میرے فادر تھے صرف ایک ہمارے گھر میں کمانے والے, ایک بردر MBBS کر رہے تھے کلکتہ میں, بردر یہاں دوسرے انجینئرنگ کر رہے تھے, سسٹر یونیورسٹی میں تھی, میں کالج میں تھا, ایک آدمی کمانے والا, اور وہ ہمارے کرکٹ پہ بھی خرچ رہے ہیں پیسہ. اینڈ یو ور دی ینگیسٹ ون. ہاں, کرکٹ پہ بھی پیسہ دے رہے ہیں ہمیں, اور بیٹ بھی خرید رہے ہیں, چیزیں بھی لا رہے ہیں. ایسا ہے کہ کبھی نہیں کہتے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات ہے, ہمارے بہت سے دوست ایسے تھے کہ جب ان کو میچ کھیلنے جانا تھا تو وہ کھڑکی سے وردی پھینکتے تھے باغ میں یا سڑک پہ, پھر کالج کی کاپیاں لے کے نکلتے تھے, وردی اٹھا کے آتے تھے. گھر والے کھیلنے نہیں دیتے تھے, پڑھنا ہے سب, اور اچھے پلیئر. ہمارے کیس میں یہ نہیں تھا, وہ کہتے تھے کھیلنا جاؤ, امتحان بھی تمہیں ہی دینا, پاس بھی تمہیں ہی ہونا ہے, اس دن بھی جواب دینا ہے, یہ یاد رکھنا بس. باقی ہنڈرنس کوئی نہیں تھی, وہ بہت زیادہ سپورٹ تھا. انٹائر لائف آپ نے ایک پبلک ڈومین میں گزاری, ڈفرینٹ طریقے سے خود کو ریجوینیٹ کرنے کے لیے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وین یو وڈ گو ہوم, اپارٹ فرام یور فیملی سپورٹ, جی جی, کچھ ایسی چیزیں جو آپ آپٹ کرتے تھے ایز ہابیز, ہم لے کہہ لیں انہیں, میوزک کس طرح کی انٹیگرل پارٹ لائف کا, کس طرح سیریسلی. میرے پاس 1000 کیسٹ ہیں, ابھی 200-300 LP ہیں, اب یہ بھی ہیں, CD بھی ہیں, لیکن کیسٹ 1000 ہیں ابھی بھی. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کلاسیکل میوزک سنتا ہوں, ویسٹرن کلاسیکل سنتا ہوں, انسٹرومنٹل سنتا ہوں, میں انگریزی پاپ سنتا ہوں, ہیوی میٹل اور راک سنتا ہوں, میں فلم میوزک سنتا ہوں, میں غزلیں سنتا ہوں, میں پاپ میوزک بھی سنتا ہوں, اور میں ہر طرح کا میوزک سنتا ہوں. کشمیری سنتا ہوں, پنجابی فوک بہت سنتا ہوں, قوالی سنتا ہوں, ہر طرح کا میوزک. لوگ کہتے ہیں کہ میوزک ہیز نو لینگویج, وہ غلط جانتے ہیں. میوزک ہے یونیورسل لینگویج. ویری ٹرو. نو کا تو چانس ہی نہیں. ہم ایرانی گانا سنتے ہیں یا عربی, ہمیں ایسے ہوتا ہے, ہاں جھوم رہے ہے نا. وہ پنجابی سنتے ہیں, سمجھ کے آتا ہے, مگر ہوش اڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ زبان کنوے ہو جاتی ہے, بات پہنچ جاتی ہے. ہر طرح کا میوزک سنتے ہیں, ہر طرح کا, بہت زیادہ. اور اس کی خدا کی مہربانی سے, ایک تو ابا خود بھی میوزک سے بڑے انوالو تھے, ہمیں انڈرسٹینڈنگ بڑی ہے. یہ کیسا گانا ہے, اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے, اس میں یہ ساز کیوں بجائے, یہ کتنا پرومیننٹ ہے, جو گانا ہے اس کے بیچ میں انٹرلوڈ میوزک کیسے استعمال ہوا ہے. بڑی فیلنگ ہے یہ. میں دھڑکن میں لوگوں کو سناتا تھا. جی جی جی. اب یہ گانا سنیے, دیکھیے انٹرلوڈ میں کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں لائف میں سوچا ہی نہیں, انٹرلوڈ میں یہ ہو سکتا ہے گانے کے. تو وہ کافی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا, میں کہتا ہوں جب نشریات میں آپ لائیو مائک پہ آتے ہیں, سب کانشیس میں جو بھی پڑھا ہوتا ہے, جیوگرافی پڑھا میں نے, ریسرچ کی, سوشل اکنامک چینج میں, باقی کیا, یہ ہے کتابیں, کہیں نہ کہیں منہ سے نکلتا ہے, ضائع کہیں نہیں ہوتا ہے.
इस्तेमाल करना आना चाहिए बस। और किड्स जो है आपके जो बच्चे हैं अभी, वो भी माशाल्लाह अपने ज़िंदगियाँ हैं जो अभी वो स्टार्ट किए उन्होंने, वो कैसे देखते हैं अपने सेलिब्रिटी फादर को? डू दे विल नो अबाउट इट? डू दे नो द लेगेसी दैट यू हैव क्रिएटेड? देखिए वो मैं उनका बाप ही हूँ बेसिकली जी। पहली बात ये, वो 24 घंटे अवेलेबल आदमी जो उसकी तो बड़ी कमजोरियाँ भी होती हैं जी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो उनको फील होता है, ये नहीं कि मैं कोई सेलिब्रिटी वगैरह हूँ, ये फील होता है कि मैंने कि ये हक बात करेगा, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उनको ये फील होता है कि हक की बात करेंगे, गलत बात नहीं करेंगे। और दूसरी बात वो मैं उनके साथ पेशेंट बहुत हूँ। पेशेंट सेंस में मैंने जब काउंसलिंग करता हूँ मैं यूथ की हर तरह की, चाहे पर्सनली डेवलपमेंट हो, बाकी हो वगैरह, और इवन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, मैं उस लेवल पे नहीं कि मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, वो बातें नहीं करता हूँ, वो गलत है अगर मैं करूँ, उसके लिए माहिर लोग। तो मेरे जो होती है ज़बान, उसमें ये नहीं होता कि तुम्हें नहीं आएगा, उसमें ये नहीं होता तुम फेल हो जाओगे, उसमें ये नहीं होता है कि अगर कोई चीज़ नहीं आई और मैं कहूँगा तुम नाकाम हो गए, मैं कहता हूँ इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा। ये हम नहीं समझ पाते हैं। वो इम्पॉर्टेंट है पेरेंट हमारे, लेकिन एक लफ्ज़ पेरेंट का इम्पॉर्टेंट होता है। अगर बच्चा चाहता है मैं अपने माँ बाप को इंटरेस्ट करूँ किसी से, नहीं हो रहे, फिर एक दिन उसने सही में अच्छा कुछ किया, उस दिन वो आपको फिर कहता है या फ़ोन करता है या बात करता है माँ को या बाप को, मैंने ये इतना अच्छा किया है, अच्छा ठीक है बाकी भी करते हैं। हो सकता है उसके बाद वो छोड़ दे और वो किसी गलत डायरेक्शन में चला जाए, क्योंकि वो कहता है जो असर तो कुछ नहीं होता है मेरे किसी को, यानी मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, व्हाई शुड आई डू इट? जो जिनसे मैं इतना प्यार करता हूँ, अगर उनको असर नहीं है तो लोग क्या मानेंगे? तो ये बातें बहुत हैं, बहुत। यानी आज हमारे मैदान में फेसबुक पहलवान हैं, ये मीडिया हमारे सोशल मीडिया की, वो हर तरह की काउंसलिंग आपकी कर रहे हैं, सोचे बगैर ही आप अल्फाज कौन से इस्तेमाल करते हैं। ईच एंड एवरी वर्ड मैटर्स व्हेन यू टॉक टू यूथ। उसकी ज़िंदगी शटर कर सकता है आपका लफ्ज़, एक लफ्ज़ हम समझ नहीं पाते। हुमायूं साहब, जाते जाते बस यही कहेंगे, कुछ ऐसा आपका मैसेज रहेगा देखने वाले स्पेशली यंगस्टर्स के लिए? दे हैव बीन रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय यू, योर वर्क। हमारे थोड़े इशू एक है हमारे इस सिस्टम में, कश्मीर में ऑफ लेट बहुत ज़्यादा हो गया है कि हम 10 में से अगर 4 हासिल करें तो हम उसको अचीवमेंट मानते हैं, एंड वी प्रोजेक्ट इट लाइक एनीथिंग इन द वर्ल्ड। अगर आप 4 अटेम्प्ट करते हैं और 4 हासिल करते हैं, इट्स अ फेलियर। In case you attempt 10 and get 8, you are successful. You get 7, you are successful. You are attempting only 4. So you have achieved 4. What kind of a success is that? You are aiming very low. Our people aim low. Our newspapers, our media projects them as if they have done something nobody in the world has done. हम उनको धोखा देंगे, एक ये बात है। और हर यूथ को अपने एंटीना खुले रखो, चारों तरफ दुनिया में इल्म है, काबिलियत है, अच्छे लोग हैं, उनसे सीखो, इम्बाइब करो और तोलो। एक ही की बात नहीं माननी, चाहे मैं ही आज 10 चीज़ें हैं उनके साथ उसको कंपेयर करो, एंड देन सी द राइट पाथ एंड सीक इट फ्रॉम पीपल। यहाँ मसला है, यहाँ प्यासा नहीं आता है कुएं के पास, यहाँ कुएं को ही जाना पड़ता है प्यासे के पास। ये इशू है कि अगर वो आना शुरू करे, थोड़ी नरमी दिखाए, लोग सिखाएंगे, क्योंकि मेंटरिंग का कंसेप्ट हमारे पास नहीं है, एंड वी हैव सिंपली नो आइडिया व्हाट इज मेंटरिंग, नो आइडिया। हम कोचिंग, काउंसलिंग, मेंटरिंग सबको एक ही करते हैं, मान लेते हैं और कहते हैं टीचर ही करेगा। बेचारा टीचर क्या क्या करेगा यार लाइफ में? यू हैव टू फाइंड समबडी, बिकॉज आई से एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड हैज समथिंग स्पेशल विच नो वन एल्स हैज। वो मुझ में भी कभी नहीं होगा, वो तुम में खासियत है, किसी को ढूंढो जो बताएगा क्या है। इम्पेशेंस है लोगों में है, बाय एंड लार्ज है, सिनिकल है। अच्छे लोग भी हैं, मैं नहीं कहता हूँ, मगर आप अच्छे की तरफ जा ही नहीं रहे। प्रॉब्लम ये है, वो अच्छा जो है वो कहीं खामोश बैठा है, लेकिन खामोशी का मतलब नहीं है उसके पास इल्म नहीं है, उसके पास इल्म है, शायद लफ्ज़ नहीं, पब्लिसिटी का कायल नहीं है। और वो चाहता है, ठीक है ना, जैसे चोर होता है, वो चाहता है कि लोग मेरे पास आए, वो समझे मैं कुछ जानता हूँ तो मैं समझाऊंगा, मैं यही जगूंगा, सुनो मैं सुनाऊंगा। 50 के बाद का आदमी वो नहीं करेगा, उसके अपना एक सेल्फ स्टीम है ना, वो लोअर नहीं करेगा सेल्फ स्टीम अपनी। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, आपने वक्त दिया अपना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। अपने मन की बात है और ये पब्लिक की बात भी है। और जो आपने मुझे बातें पूछी मैं साफ बताऊंगा। नॉर्मली लोग मुझसे पूछते हैं सिर्फ आपने धड़कन किया, स्पोर्ट्स किया, वहाँ गए, यहाँ कमेंट्री की, यहाँ किया, यार मेरी बात भी तो करो। करते ही नहीं मेरी बात, आपने मेरी बात इंडिविजुअल। एब्सोल्युटली सर, पीपल शुड नो अबाउट यू। तो थे हुमायूं कैसर। जैसा हुमायूं साहब ने कहा कि हम सब अपना एक पर्टिकुलर टैलेंट है, एक खासियत है, ज़रूरत है तो उसे ग्रूम करने की।
और वो ग्रूम तभी होगा जब आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होगी, एक प्रॉपर गुरु होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज की गुफ्तगू पसंद आई होगी। हम मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। दीजिए इजाज़त। आदाब।